आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जय श्री कृष्ण। गीता विषय रे वैष्णव्य तंत्रसार नामक ग्रंथ रे एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा जाइछि। सर्वोपनिषेधो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पाए पावत सुधि भोक्ता दुग्धा गीता मृतं महत्। अर्थात समस्त उपनिषद गाई अटंती। से शास्त्र रूपक गाई स्तनरु जो ज्ञान रूपक दुग्ध बाहरुची ताहा ही गीता। आउ से गीता रूपक दुग्ध को दुहुतिबा गोपाल पुत्र कृष्ण अटंती। अर्जुन गोवत्स जे कृष्ण रूपक गोपाल साहाय्य रे गीतामृत रूपक दुग्ध पिउचंती। प्रकृत रे गीता ज्ञान भक्ति एवं कर्मर एक गंगा जहा कि जुग जुग धरी ए धरित्री बही चली। गीतार उत्पत्ति गोटे बहुत ड्रामाटिक मोमेंट रे होइथिला। ये सेतेबेले होइथिला जेतेबेले कौरव और पांडवंकर सेनानी युद्ध निमंते कुरुक्षेत्र भूमि रे परस्पर सम्मुख रे आसी उपस्थित हेले। आउ पांडवंकर सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन हठात युद्ध करिया को मना करदेले। ए ड्रामाटिक बा ड्रामाइक क्षण को आधार करी गीतार समस्त फिलोसफी आउ समस्त ज्ञानर महल छिड़ा करा जाइछि। ए ज्ञान ए फिलोसफी केवल अर्जुन को नुहे बरंग आम समस्त उद्दिष्ट समग्र मानव जाति निमंते। कारण अर्जुन को भली प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे एमिति मुहूर्त आसी थाए जेतेबेले ता पई एहा निष्पत्ति नेबा कष्टकर होइथाए जे सेतेबेले तार धर्म कौन तार कर्तव्य कौन। सेथिपई ज्ञानी मानकर कहवा कथा जे प्रत्येक प्राणी जीवन में जो कर्तव्य क्षेत्र रही ताहा ही तार कुरुक्षेत्र। आम समस्त निज निज कुरुक्षेत्र दंडायमान होई प्रति पदक्षेप अर्जुन भली निजर कर्तव्य निजर धर्मर निर्णय करिया होइथाए। अर्जुन का पुरुष नथिला, से शह शह युद्ध करिथिला, किंतु कुरुक्षेत्र रे अज्ञान ममता एवं मोहर आवर्जन पड़ जाई से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाइथिला।
ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ନିଜ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀରେ ଅର୍ଜୁନର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜହଂସ ଆବର୍ଜନାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନପାରେ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଜୁନର ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯିଏ ଜୀବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମାର୍ଗ ଖୋଜିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଇଛି ଯାହା ଗୀତା ପଠନ କରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହାର ସମର୍ଥନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ନା କେବଳ କିଛି ଗୂଢ଼ ବିଷୟରେ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ବରଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କିଛି କହିହେବ ଯାହା ଗୀତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୀତାର ଫିଲୋସଫିକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଏମିତି ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଭିଲିଆନ୍ ସିଏ। କାହିଁକିନା ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ରାଜସିଂହାସନର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଜ୍ଞା କେବେ ମାନୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପୁତ୍ର ମୋହ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ନେହର ଏଭଳି ଶକ୍ତ ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଆଉ ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସଂସାରର ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏହି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଯେ ଯେବେ ମୋହ, ଲୋଭ ଆଉ ଈର୍ଷାର ପରଦା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଭଲ କର୍ମକୁ ଖରାପ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଏମିତିକି ଉପଦେଶ ଦେବା ଲୋକକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କହିବାକୁ ବି ପଛେଇ ଯାଏନି। ଏକଥା ପଛେ ଜାଣିଥାଇ ବି କି ଉପଦେଶ ଦେବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତମେ ଅଟକେଇ ପାରିବ। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏ ସମୟ ନୀରବ ରହିବାର ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଦ୍ୱେଷ, ଏ ଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ବିନାଶର ଦ୍ୱାରରେ କରାଘାତ କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ହିଁ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌରବଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ଏ ବିନାଶର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଲେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ତମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବନି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲେନି। ଏଇଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତିଧାରୀ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ସଂସାରକୁ ବି ଈର୍ଷା, ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅଧର୍ମର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଇନର କନସିୟସର ସିମ୍ବଲ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବିବେକ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭଳି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥୀ
ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଅନ୍ତରର ସେହି ସ୍ୱରକୁ ବି ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱର ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭଳି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏନି। ଇଏ ଆପଣ କେମିତିକା ଅନୁଚିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅଧର୍ମର କଥା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ମହାରାଜ। ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ତା ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏନି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ବାସ୍ତବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହିଁ ଗୀତାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଫିଲୋସଫି, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଭରି ରହିଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଗୁଣ ଆଉ ଶକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେହି 18 ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ କହିବୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହେ କେଶବ, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସର କଥା କହୁଛ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମୋହର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ କହୁଛ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଟରେ ମୋତେ କର୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛ। ଏ ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କାରଣ ଥାଏ, କେହି ପ୍ରେରକ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ। କିଛି ଭାବନା ତ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ପଛରେ ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଆଉ ଭାବନା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। କାରଣ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବିନା ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନପାରେ। ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରୁ ହିଁ ଭାବନାର ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାବନାର ଏ ନଦୀ ଶୀଘ୍ର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମରିବା ଲୋକର ଚିତାର ଅଗ୍ନି ଶୀତଳ ନ ହେଉଣୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ବି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। କେହି 2 ଘଡ଼ି ଅଶ୍ରୁ ଝରାଏ, କେହି 2 ଦିନ। ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥାଏ ତ ମା, ସେ ବି ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ପୁଣି ସଂସାରର ମାୟାରେ ଫସିଯାଇ ପାର୍ଥିବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପାର୍ଥ ଏ ଲୋକର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପରଲୋକ ପ୍ରାଣୀ ସାଥେ ଯାଏ ନାହିଁ। ପଛ ଜନମର କେଉ ବି ସମ୍ପର୍କ ପର ଜନମକୁ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଯେତେ ସବୁ ପଡ଼ଇ ଝାଉଁଳି ବିସ୍ମୃତିରେ ଲୀନ ହୁଅଇ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଜନମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବା ମନେ ରଖିପାରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ଚାରି ଦିନର ପ୍ରୀତି ଜଗତରେ ଚାରି ଦିନର ଭାବ ଯେ ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ଭାବ ହୁଅଇ ଅଭାବ ଯେ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରକୁ କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଯେ
घर को करती शुद्ध जे जहांक चिंतारे जड़ाई मणिष जालती चिताता अवश्य जे जहांक चिंतारे जड़ाई मणिष जालती चिताता अवश्य जे जहांक चिंतारे लहु करे पानी रे फसांती से अवश्य जे जहांक चिंतारे लहु करे पानी रे भसांती से अवश्य जे पिंड दान करी प्रेतात्मा ठारू करंती निजकु मुक्त जे हंत संत जे भांगी दिया से ही मोहरा श्रृंखला करुछि जहाँ भी बस जे हे केशव गोटाए पटरे तो तमे मते एक कथा शिखौछ जे भाव संपर्क सबु केवल लोक देखाणिया आ अन्य पटरे एबे तमे एक कथा कहला जे संबंध आ संपर्क रु भावनार स्फुरण होता है कहूथिल ना हाँ आ मु एक कथा कहूथिली जे कर्म करिबा पई कोनोसी ना कोनोसी भावना जरूरी अटे आ भावना पई भाव संपर्कर आवश्यकता रही कहीं ना किछि संपर्क ही भावना सृष्टि होता है तेणु जदि मनुष्य सबु संपर्क छिन्न करदेव निजर भावना को त्याग करिब ताहले आउ से कर्म कहापई करिब निजर धर्म निमित्त हाँ निजर धर्म निमित्त अर्थात धर्म निमंते भावनार आवश्यकता पड़ी न थाए ना धर्म निमित्त भावनार नुह बरं निजर कर्तव्यर ज्ञानर आवश्यकता हुए ए कथार आवश्यकता पड़ी थाए जे मनुष्य जानी रखु जे से परिस्थिति रे मनुष्यर कर्तव्य केउटा भावना तो केते थर कर्तव्यर मार्ग रे आसी जाई थाए मनुष्य को दुर्बल करि दै थाए जेमिति ए मुहूर्त रे तुमर भावनार कारणरू तुम मन रे जो मोह उत्पन्न हेछि ताहा तुमको कर्तव्यर मार्ग रु पथभ्रष्ट करुछि सेथिपई शास्त्र कहि थाए जे कर्तव्य भावना ठार ऊर्ध्वरे एबे तमे जने बड़ ज्ञानी भली तर्क करुथिल जे कर्म निमंते कौनसी प्रेरणा रहिबा आवश्यक आउ प्रेरणा निमंते कौनसी भावना रहिबा आवश्यक ए सारा तर्क मोहजनित अटे भाव संपर्कर मोह तुमर बुद्धि को भ्रमित करी रखिछि सेथिपई तुमको सत्य दृश्य हेउनी तेणु ए मुहूर्त रे तुमको धर्म विस्पष्ट दृश्य हेउनी धर्म कोटा धर्मर व्याख्या कौन एहार निर्णय किए करि थाए हे मधुसूदन से किए जी धर्मर विधान तैयारी करिछि हे अर्जुन प्रतिटी प्राणी निजर धर्मर विधान निजे तैयारी करि थाए मु बुझी पारलिनी केशव देख पार्थ धर्मर सेही विधान जहा को अन्य केही तैयारी करिथिबो ताहा तुमर धर्म केबे ही परिबनी तुम धर्म तो सेया जहा को तमे निजे तैयारी करिथिबो जहा को तमर आत्मा स्वीकार करिथिबो धर्म एक व्यक्तिगत प्रसंग जहार निष्पत्ति व्यक्ति को निजे को करने को पड़ी थाए
ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି କେଶବ। ଦେଖ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି। କୌଣସି ଗାଁ ଉପରେ ଦସ୍ୟୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ଧର୍ମ ହେବ? ସେ ମରୁଥିବା ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳର କେତେ ବୁନ୍ଦା ଦେଇ ନିଜର ପୁତ୍ର ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବ? ନା ସେ ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ତରବାରୀ ଉଠେଇ ସେ ଦସ୍ୟୁଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ନିଜ ଗାଁର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେମିତି ନେଇପାରିବ? ଏହାକୁ ତ ଧର୍ମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ, ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେହି ବାହାର ଲୋକ କରିପାରିବନି। ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତାକୁ ହିଁ ନେବାକୁ ହେଇଥାଏ ଯେ ଏ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସମୟରେ ତାର ଆତ୍ମା ଯାହା ଡାକରା ଦେବ ତାହା ହିଁ ତାର ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀର ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଥାଏ। ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧାନ, ଜଗତ କର୍ମ ପ୍ରଧାନଟି, ଏ ଜଗତ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ, ଏ ଜଗତ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ବାସ୍ତବିକତା କହିଛି ଯେ କେବଳ ଶରୀର ହିଁ ନଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅବିନଶ୍ୱର, ଯାହା ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ମରିନଥାଏ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिए ए आत्मा को मृत्युर योग्य भावे बा जिए एहाको मारिबा पई चिंता करे से दुहे अज्ञान, कारण आत्मा ना काहाको मारि थाए आ ना काहा द्वारा मरा जाई पारि थाए। सेथिपई काहार मारिबा बा मरिबारे शोक न करी तमे निजर कर्तव्य कर। तमर धर्म युद्ध करिबा, निजर धर्म भाबी एबे युद्ध कर। युद्ध 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 ए श्रीकृष्ण क्यों पर्यंत एमिति युद्धर माला जपुथिबो? जदि अर्जुन युद्ध करने को न चाहूची तेबे ताकू एमिति भावे युद्ध पाई विवश करबा कोन उचित? उचित तो ये भी नुहे महाराज जे जड़े योद्धा युद्ध भूमि को जाई युद्ध करने को मना करदेव। ये तो सेमती कथा है जे जड़े नाविक नारे समस्त को बसई मझी दरिया भितर को नहीं जीव आउ पुणी सेठी कहबो जे मु एबे कात रखी दउची आग को मु आउ चलई पारिबिनी। तेबे एथिरे कृष्णर कौन हानि? आत्मा को अमर व्याख्या करी भावनार वर्षार भिजिथिबा अर्जुनर अति कोमल मन को कहीं पथर कर दउची। जदि आत्मा अमर तेबे ये कौन आवश्यक जे युद्ध करी युद्ध भूमि को हजार हजार शबर आच्छादित करदेव? एथिरे कहार कौन लाभ हब? महाराज युद्धर क्षति तो कौरव एवं पांडव उभय को सहवाक हब, किंतु ये युद्ध रे अंतिम लाभ कहार जे हब से कथा तो युद्ध पर ही जना पड़िबो। आउ जदि अर्जुन अस्त्र त्याग करने जोगु युद्ध न हुए तेबे यार लाभ निश्चित रूपे? हाँ महाराज, तेबे तो निश्चित रूपे यार लाभ कौरव को मिलिबो
ଆଉ କୌରବଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ପଡିବନି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। हे मधुसूदन, तमे बारंबार गोटाए कथा उपरे जोर दौच जे मन उपरे संपूर्ण रूपे आयत्त रख, तेबे मुक्तिर द्वार खोलीजिब। किंतु मन को आयत्त करिवार कौन सी सरल साधन अछि? साधन तो अवश्य अछि, सरल भी आउ दुष्कर भी। सरल भी दुष्कर भी, एहार अर्थ कौन केशव? एहार अर्थ हेउछि जे जदि तमे धीरमति संपन्न हुओ, दृढ़ निष्पत्ति संपन्न हुओ, तेबे कार्य सरल। आउ जदि तमर मति धीर नुह, तेबे तमे दृढ़ निष्पत्ति संपन्न भी नुह। आउ दृढ़ निष्पत्ति न नहीं पारिले जन्म जन्मांतर पर्यंत तमे घुरी बुलुथिब। ए दृढ़ निष्पत्ति केमिति निया जाई परिबो? विश्वास द्वारा। काहा उपरे विश्वास करिबी? परमात्मा को ऊपर विश्वास द्वारा, सत्य विश्वास द्वारा, निजर धर्म विश्वास द्वारा। जेतेबेले निज धर्म अर्थात कर्तव्य को जानी परिबो, सेतेबेले दृढ़ निश्चित हेई निजर धर्म पथरे, निजर कर्तव्य पथरे तमे अग्रसर हब। आउ तमे सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय ए सब को एका बोली भाबी निज पथरु तमे विच्युत हेबनी। हे अर्जुन, तमे शिष्य रूप में मोर शरणापन्न होइछ। सेथिपाई मु एपर्यंत तुमको ज्ञान जोग अर्थात सांख्य जोगर शिक्षा देइछि। एबे मु तुमको कर्म जोग विषय से ही गूढ़ विधि कहिबी, जहा द्वारा तुमे कर्म करी सुद्धा कर्म बंधन मुक्त रहिब। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवप्स्यसि। जय पराजय पुणी लाभ हानि दुख सुख समभावे आदरिणी अटी न होई विमुख। रण क्षेत्रे लाभ क्षति बुझे नाही योद्धा जिए, शत्रु को करी संहार धर्म निज पाले सिए। शस्त्र खेल ना जेठी रणभूमि क्रीड़ा क्षेत्र, क्षत्रिय तो युद्ध प्रिय एही ताहार चरित्र। छाड़ी जेते शंका मनु कर युद्ध मोर मित्र, पाप पुण्य विचार नुह तुमे योग्य पात्र। ठीक यही भली सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा जितिबा हारिबा को एका भली विचार करी केवल एइथिपाई युद्ध कर, कहीं ना ए मुहूर्त रे युद्ध करबा ही तमर कर्तव्य। आउ जदि एई मानसिक प्रवृत्ति रे एहाकु निज कर्तव्य विचार करी युद्ध करिवो, तेबे तुमको एथिरे पाप लागिबनी। ए कोन कहउछ केशव जे युद्ध करी पाप अर्जन करिबिनी? युद्धरे तो बहुत हिंसा हब, अनेक प्राणींकर हत्या हब, आ मनुष्य से पापरु केमिति रक्षा पाइब? जदि कौनसी भी कार्य निष्काम कर्म जोगिंक भली करा जाई थाए, तेबे ना तार पाप लागि थाए आ ना तार पुण्य मिली थाए। निष्काम कर्म जोग? हाँ, निष्काम कर्म जोग। ये कौ जोग माधव जहा कि मनुष्य को पाप एवं पुण्य उभय मुक्ति दे थाए? ये एक गूढ़ विद्या पार्थ, जी एहार रहस्य को बुझिनिए से संसार रे रहिथिले सुद्धा, संसार समस्त कर्म करुथिले सुद्धा कर्म फलर बंधन मुक्त रही थाए। ये तो बड़ा आश्चर्य कथा कहूच केशव। मोर बुद्धि ए सब को ग्रहण करि पारुनी, कारण तम बुद्धि उपरे एपर्यंत से आसक्तिर परदा पड़िछि। आउ जो निष्काम कर्मजोग कथा मु कहूछि ताहार भित्तिभूमि ही निराशक्तिर आधार उपरे आधारित। हे अर्जुन,
এই নিরাসক্ত যোগକୁ ଯଦି ତମେ ବୁଝିଯାଅ ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆସିଯିବ। हे माधव, ए जोगर साधना केमिति करंती? ए जोगर नियम कौन? एहार साधना निमंते 1000 वर्ष तपस्यार कौनसी आवश्यकता नहीं। एहार साधना तो क्षण मात्र के ही जाई थाए। क्षण मात्र के? हाँ, क्षण मात्र के। जो क्षण रे प्राणी निजर मनर स्वभाव को परिवर्तन करि दिए सही क्षण। किंतु हे केशव, कौन से मनुष्य क्षण मात्र के किपरि आसक्ति को दूर करि परिबो? जेतबेले से कर्म करे ता फलर आसक्ति तो ता कर्मर अंश ही जाए, जहार अंतर्भुक्त फल प्राप्तिर इच्छा रे से कर्म करि थाए। हे अर्जुन, बस एई ठारू ही तो निष्काम कर्मयोगर साधना आरंभ होता है। अर्थात तमे कहिल जे प्राणी निजर फल प्राप्तिर इच्छा रे ही कर्म करि थाए, किंतु निष्काम कर्मयोग ए शिक्षा देई थाए जे फल प्राप्तिर इच्छा रे नुह, बरं निजर कर्तव्य पूर्ण करने निमंते निजर धर्म पालन करने निमंते कर्म कर। फल उपरे भरोसा रखी कर्म कर नहीं, कहीं फल प्राप्ति तुम हाथ में नहीं, तुम अधिकार रे केवल कर्म करबा ही रही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म रे केवल अधिकार तुम कर्म करी जा कर्म। फलर कामना न रखी मनरे पालन करी जा तुम धर्म। ए स्थिति रे कौन धर्मटी तुमर? ए स्थिति रे कौन धर्मटी तुमर? बुझ भल भावे ताहार मर्म। ए स्थिति रे कौन धर्मटी तुमर? बुझ भल भावे ताहार मर्म। जेउ धर्म तुम भावुच उचित निष्ठारे पालन कर से धर्म। जेउ धर्म तुम भावुच उचित निष्ठारे पालन कर से धर्म। हे पार्थ, तुम्हें कर्म करिपार, कर्म करिपार संकल्प करिपार, किंतु तार फल पाइबा तुम अधिकार रे नहीं। हे मधुसूदन, मु जो कार्यर संकल्प करी से कार्य तो मु करी। जेतबेले भोजन करिवार निष्पत्ति नहीं बसबी, गुंडा उठाई ताको मुहर नदेले केमिति खाइबी कहिल? जदि से खाद्यर गुंडा तुम प्रारब्ध रे नथिबो तेबे तमे ताको पाटी पर्यंत तो नहीं जीवो, किंतु से गुंडार गोटिए दाना भी तमे तुम पाटी भीतर को नहीं पारिबनी। हे अर्जुन, केवल कर्मर संकल्प ही प्राणीर अधिकार रे थाए, तार फल प्राणीर अधिकार रे न थाए। ताहा केमिति? सेई कथा तो कहूछि मु। पार्थ, टिके से दृश्यर कल्पना कल जे नगरर श्रेष्ठीଙ୍କ सम्मुखरे बहुत स्वादिष्ट व्यंजन परसा जाइछि। थाली पुणी सुनार गरम गरम व्यंजन भरी रही, जहाकु देखि से बहुत प्रसन्न होउछंती। से बड़ खुशी रे प्रथम गुंडा उठेले। देखिल तो प्रारब्ध रे नथिले पार्टी पाखक आसी भी दाना फेरी जाए।
किंतु हे अर्जुन ए उदाहरण अर्थ यह नुह जे तुम सबकि प्रारब्ध उपर छाड़ी दे निज अकर्मण्य हो जा। मन रख मु कही माँ कर्मे फल हेतुर्भु माते संगस्त कर्मणि। हे केशव तुम कहवा अनुसार जदि फल प्रारब्ध निज इच्छा अनुसार देवाक होता है तेबे प्राणीर कर्म करिवार आवश्यकता कौन? कर्म करिवार आवश्यकता कौन एकथा जानिबा पूर्वरु एकथा तो जानिनियो जे प्रारब्ध कौन केमिति हेई थाए प्रारब्ध। हे केशव प्रारब्ध कौन ताकू जानिबारे कष्ट कौन अछि? ये तो सीधा कथा जे जहा भगवान को इच्छा ताही मनुष्य प्रारब्ध होता है। ना अर्जुन ना ए धारणा सत्य नुह। कहीं सत्य नुह? कहीं ना मु कहार प्रारब्ध तैयारी करि न थाए ना मु कौन से प्राणीर कर्म अथवा कर्मफल हिसाब रे हस्तक्षेप करे। सेथिपई प्राणीर प्रारब्ध प्रस्तुति रे मोर आदौ हाथ न थाए। तेबे किए प्रस्तुत करे प्राणींकर प्रारब्ध? प्राणींक निज कर्म। अर्थात अर्थात प्राणी जमिति कर्म करिब ताको सेमिति फल मिलिब। भल कर्म करिब तो भल फल पाइब आ खराब कर्म कले खराब फल मिलिब। एई जो प्राणींकर भल मंद कर्मर भल मंद फलर हिसाब ताकू ही प्रारब्ध कहते। निजर पुण्य कर्मर फल स्वरूप सुख आउ निजर पाप कर्मर फल स्वरूप दुख प्राणी को एई जन्मरे किंबा निजर पर जन्मरे भोगिबाक होइथाए ताहा टळि न थाए। सेथिपई अकर्मण्य न हेई निरंतर निजर धर्म अनुसार कर्म करि चल आ मन रे दृढ़ विश्वास रख जे जेउ निहत अनुसार तुमे कर्म करि चलिछ सेई निहत अनुसार तुमको फल अवश्य मिलिबो। कर्मर यह अटल विधान एथिरे केबे भी काहा सहित अन्याय हेई न थाए। हे अर्जुन प्राणीर कौनसी कर्म निष्फल जाएनी मनुष्य को ता कर्म फल अवश्य मिली थाए। एमिति भावरे प्राणीर कर्म अनुसार तार कर्म फल प्रति मनुष्यर प्रारब्ध रे लिखि दिया जाए। सेथिपई प्रत्येकटी जन्मरे मनुष्य निज कर्म बंधन रे बांधी ही जाए। सेई कर्मर बंधन रे बांधी ही जिबा हेतु मनुष्य आतजात अर्थात जन्म जन्मांतरर चक्र व्यूहरे पड़ी घूरी बुलु थाए आउ से मोक्ष प्राप्त ही पारे ना। कर्मर बंधनरु आतजात ए जन्म जन्मांतर मध्य संपर्क कौन? मनुष्य निजर गोटे जन्मरे जो कर्म करिथाए से कर्मर फल स्वरूप पाप एवं पुण्य उभय मिली थाए। केबे पाप अधिक हो जाई थाए तो केबे पुण्य। उभयंक सुख दुख भोगिबाकु जाई निजर नूतन जीवन रे जो कर्म से करे तार हिसाब पाप पुण्यर खातारे नूतन भावे पुणी लिखि दिया जाए। एमिति भावरे ए नूतन कर्म को भोगिबा निमंते आउ एक जन्म ग्रहण करे मनीष आउ जन्म जन्मांतर रे प्रक्रिया एई भली भावे गड़ी चली थाए आउ मनुष्यर आत्मार निजर परमात्मा सहित मिलन हो पारि न थाए जहाको मोक्ष कहा जाए। हे कृष्ण यार अर्थ होची जे मोक्ष प्राप्ति निमंते मनुष्य पाप एवं पुण्य रक्षा पाइबा निमंते कौन सी कर्म करबा अनुचित। समस्त कर्म त्याग करी सन्यासी हिजबा उचित। कौन से भी मनुष्य अकर्मण्य हो पारिबनी। कर्म तो ताको प्रत्येक स्थिति रे करबाकु ही थाए किंतु सन्यासी तो कर्म त्याग करिथांती ना। हे पार्थ सन्यासी भी कर्म त्याग करि न थांती ना केबे करि परिबे। मो पूर्वरु कहिथिली जे सन्यासी भी कर्म करि थांती। खाइबा पीबा बसिबा उठिबा तपस्या करिबा साधना करिबा ये सब तो कर्म न। कर्मरु केही केमिति निवृत्त हेई पारिबो? अकर्मण्य विशापटी कर्म ही वरदान कर्म न करे जे जगते से प्राणी मृतक समान से प्राणी मृतक समान।
जदि बा प्रारब्ध हुए सबु किछि काहींकि कर्म करिब मनीष। कर्म बिना केउ प्रारब्ध न थाए कर्मर विधान अछि अवश्य। फल परे जदि नाही अधिकार फल परे जदि नाही अधिकार कर्म गछ के रोपिब काहींकि। फल परे जदि नाही अधिकार कर्म गछ के रोपिब काहींकि। कर्म फल नेई मिलई जन्म लेखि रखी थाए सबुटी बिहि कर्म रे प्रत्येक धर्मर साधन कर्मर महत्व अटई। हे केशव जेतबेले कर्मरु मनुष्य मुक्त हो पारिबानी तेबे से कर्म केमिति करिबो जेमिति कि ताको पाप एवं पुण्यर मुक्ति मिलिबो। हे पार्थ एहार उपाय होछि जे मनुष्य फलर इच्छा त्याग करी कर्म को निजर धर्म मानि नब। फल ताको अवश्य मिलिबो किंतु से फल को से विधानर इच्छा विचार करी ताको स्वीकार करिबो। ज्ञानी पुरुष एही जोग को आपणे नै कर्मयोगी ही जानती। वाह प्रभु वाह। बही चली गीतार गंगा भक्तिर गंगा कर्मर गंगा। अर्जुन सहित से ही गंगा रे डूबी जाइछि संसार सारा। सब धर्मार वेद भूलित में देई जाओ तमे मोर शरण। प्रतिटी पापरू मुक्ति देवी मु एबे सोकर नाही करण। एबे सोकर नाही करण। धर्म अधर्मर भूली जा भेद। धर्म धर्मर भूली जा भेद। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव तुमे त स्वामी सखा अमर। तुमे त स्वामी सखा अमर। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण यार अर्थ होची जे मोक्ष प्राप्ति निमंते मनुष्य को पाप एवं पुण्य रक्षा पाइबा निमंते कौन सी कर्म करबा अनुचित। समस्त कर्म त्याग करी सन्यासी होइबा उचित। कौन से भी मनुष्य अकर्मण्य हो पारिबनी। कर्म तो ताको प्रत्येक स्थिति रे करबाको पड़ी थाए किंतु सन्यासी तो कर्म त्याग करिथांती ना। हे पार्थ सन्यासी भी कर्तव्य त्याग करि नथांती ना करि पारिबे। मु पूर्वरु कहिथिली जे सन्यासी भी कर्म करिथांती। खाइबा पीबा बसिबा उठिबा तपस्या करिबा साधना करिबा ए सब तो कर्म ना। कर्मरु केही केमिति निवृत्त हो पारिबो। जदि बा प्रारब्ध हुए सबु किछि काहींकि कर्म करिब मनीष।
कर्म बिना केउ प्रारब्ध न थाए कर्मर विधान अछि अवश्य फल परे जदि नाही अधिकार फल परे जदि नाही अधिकार कर्म गछ के रोपिब काहिकी फल परे जदि नाही अधिकार कर्म गछ के रोपिब काहिकी कर्म फल नेई मिलई जन्म लेखि रखी थाए सबुटी बिही कर्म रे प्रत्येक धर्मर साधन कर्मर महत्व अटई हे केशव जेतबेले कर्मरु मनुष्य मुक्त हो पारिबनी तेबे से कर्म केमिति करिब जेमिति कि ताको पाप एवं पुण्यरु मुक्ति मिलिब। हे पार्थ एहार उपाय हेउछि जे मनुष्य फलर इच्छा त्याग करी कर्म को निजर धर्म मानि नब फल ताको अवश्य मिलिब किंतु से फल को से विधातार इच्छा विचार करी स्वीकार करिब। ज्ञानी पुरुष एई जग को आपणार करी कर्म जोगी ही जानती। आहा केड़े महान सत्य को प्रभु केते सहजरे कहिदेले। केमिति भगवान? देवी समस्त भय चिंता कलुषतार मूलरे आसक्ति रही थाए कर्मयोग फलर आसक्ति को त्याग करने को प्रवर्ताई थाए अर्थात निष्काम होई कर्म करने को कही थाए। एथिरे मनुष्यर कि लाभ होइते भगवान? लाभ एया देवी जे कर्मयोग चित्त को शुद्ध एवं भयमुक्त करिथाए। देवी निर्भय हो पारे मनुष्य जीवन को आनंद रे उपभोग करिथाए। अर्जुन को प्रभु एही रहस्य बुझौछंती। हे अर्जुन तमे इंद्रलोक को दिव्यास्त्र प्राप्ति निमंते जाइथिल सेतेबेले उर्वशीर माया जाल तमे पड़ी नथिल उर्वशी प्रति आकर्षित ही नथिल कारण से मुहूर्त रे तम मन निरासक्त थिला। मु तो स्थान को निज अतिथि सेवारे निज को समर्पित करने को आसी। ना ना ये धर्म नुह ये तो अधर्म पाप। हे अप्सरा मो निमंते प्रत्येक नारी जो मो विवाह बंधन आबद्धा नुहे आदरणीय देवी एवं माता सदृश। तेबे कौन पृथ्वी लोकर यही धर्म जे पुरुष जने कामातुरा नारीर प्रेम याचना को असमान करी उपेक्षा करिब? किंतु देवी आपणकर एवं मोर संपर्क जने नारी और पुरुषर नुह बरं धर्म एवं इंद्रलोकर नियम अनुसार भी आपण मोर माता। उर्वशी निकटरे तमे तो सेदिन विचलित हो नथिल किंतु आज कहीं विचलित होउछ? सेतेबेले तुमे निजर धर्म भूली नथिल किंतु ए मुहूर्त रे तमे निजर धर्म को भूली जाउछ। एहर कारण जानिबा को चाहुछ? हाँ केशव तुमार मन तुम आयत्तरे नाही कहीं ना तमे कर्म योग को आपणार करिन। कौन कहला? कर्म योग द्वारा मन आयत्त ही रही थाए? हाँ अर्जुन कर्मयोग कारण कर्मयोगीर मन इतस्तत ही पथभ्रष्ट हुए नहीं कर्मयोगीर बुद्धि स्थिर हो जाए जेमिति पथर एक शक्तिशाली स्तूप को नदीर उत्ताल लहरी भी विचलित करि पारेनी। अथवा विराट जलप्रपात भी से पथर स्तूप को भांगी पारि न थाए ठीक सेमिति कर्मयोगीर मन भी ना बन्यारे विचलित हो पारे आउ ना भावनार बेगरे खंडित हो पारे। हे पार्थ एथिपाई तमे निष्काम कर्मयोगर साधना कर आउ निष्काम कर्मयोगर सबुठु बड़ विशेषत्व हेउछि जे तमे कर्म करिबी कर्मर बंधन रे बंधित हेबनी कर्म करी मध्य कर्मर बंधन रे बांधी हबनी। ए कौन कहूची कृष्ण? एमिति लागुची
ମୋ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡୁର ନିଷ୍ପାପ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଫସେଇ ଦଉଛି। हे केशव, तमे मते को अजणा मार्ग रे प्रेरण करूछ? देखिल तो संजय, अर्जुन मनरे भी घोर संदेह उंकी मारुची। से जानी सारी जे कृष्ण गोलमालिया कथा कहूची। हे केशव, कर्म करी कर्म बंधन मुक्त रही ये केमिति संभव? से कर्मर उपाय कुह जो थे कि कर्म करिब किंतु बंधन रहिबनी। एहार बड़ सहज उपाय रही। तमे कर्म फलर आसक्ति आदौ रखनी। ये केमिति संभव? फल प्राप्तिर इच्छा तो समस्तंकर थाए, किंतु कौन इच्छा करने द्वारा मनुष्य को तो फल प्राप्त होता है ना अर्जुन? कहीं फल तो प्रारब्ध हाथ में रही। आउ जो मनुष्य भी फल प्राप्तिर इच्छा करि थाए तार मन फल विषय चिंता करी निजर कर्म एवं कर्तव्य पथर विच्युत हो जाए। आउ ताकू से फल भी प्राप्त हुए जहाँ कि से इच्छा करे। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म करि परिबो, फल कदापि मनुष्यर अधीनस्थ नुह। केशव, जदि फल प्राप्ति मनुष्यर किंबा ता कर्मर अधीनस्थ नुह तेबे से कर्म करिबो काहेकि? कारण मनुष्यर धर्म हेउछि निज कर्तव्य पालन करिबा। एई कर्तव्य पालन निमंते आवश्यक हेउछि कर्म करिबा। किंतु हे केशव, फल प्राप्तिर आशा त्याग करदेले मनुष्य मध्य कर्म करिवार प्रवृत्ति किपरि उत्पन्न होब? जदि फलर इच्छा न रहे मनुष्य कर्म बा काहेकि करिब? हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य माने फलर इच्छा कर्म प्रवृत्त हुंती से माने सुख दुख आदिर चक्र में पड़ जाइथांती। सेमानक मनर शांति नष्ट होता है। प्रति क्षण प्रति मुहूर्त फल प्राप्तिर विचार रे सेमानकर निद्रा उड़ी जाए। हे पार्थ, तमे दुर्योधन एवं ता भाई मानकु देख। बाल्यकालर ही दुर्योधन, शकुनी एवं दुःशासन आदि हस्तिनापुरर सिंहासन को प्राप्त करने निमंते केते अधर्म करिसेंती। स्मरण अछि ना तमर? से माने जेतेबेले भीम भाई को पानी को फिंगी देथिले आउ से घटना भी स्मरण थिबो जेतेबेले एई कौरव माने तम समस्त पांडवों को जतुगृह रे पोड़ी मारिबार योजना प्रस्तुत करथिले। केते अभिनव योजना थिला सेमानंकर। से अग्नि तुम मानकर जीवन रक्षा करिबा असंभव थिला। केते योजनाबद्ध कर्म थिला, किंतु ए कर्मर फल सेमानंकु मिलिला ना। कारण प्रारब्धर योजना अन्य किछि थिला। एई भली भाबे सेमानक इच्छा विरुद्ध रे जेतेबेले समस्त प्रयास विफल हो गला, सेमाने तुम समस्तंको छल कपट द्वारा कार्य करी 12 वर्ष वनवास आउ 1 वर्ष अज्ञातवास रे पठै दैथिले। वाह मामा श्री वाह, कौन दाना पकैल म? परंतु बारंबार प्रयास करने सत्वे मध्य कौरवों को सेमानक इच्छा मुताबक फल प्राप्ति हो पारानी। सेमाने भूली जाइथिले जे फल प्रारब्ध अनुसार ही मिली थाए। एई दुष्कर्मर चक्र रे सेमाने संपूर्ण फसी जाइछन्ति पार्थ। आउ जेउ फलर कामना सेमाने करूछन्ति
से फल से प्राप्त हो पारिबनी बरं दुष्कर्मर कुश्चित फल ही से मिलिब। ए कथा तमे सर्वदा मन रखिथिब। देवी गोटे पटे दुर्योधन हेले अन्य पटरे भरतंक उदाहरण रही। गोटे पटे आसक्ति रहिले अन्य पटे निरासक्त भाव। भरतंक श्रीराम सिंहासन अर्पण कला परे भी से अस्वीकार कले। अन्य पटरे दुर्योधन निज भाईंकर राज्य छल कपट करी छिन्न कला। भरतंक राजत्व मिलथिले भी से ताको ग्रहण करने परिवर्ते श्रीराम सन्यासी रूप को से धारण कले। राम भक्त रामंकर नियंती प्रतीक। राम भक्त रामंकर नियंती प्रतीक। मथारे कठाउ पुणी आखिरे लोतक। राम भक्त रामंकर नियंती प्रतीक। राम भक्त रामंकर नियंती प्रतीक। हो हो मथारे कठाउ चलंती भरत। रघुवंशर एत महत। सन्यासी बेसे भरत करिबे राजत्व। राम भक्त रामंकर नियंती प्रतीक। राम भक्त रामंकर नियंती प्रतीक। देवी यह जड़े महान जोगी उदाहरण जे पूर्ण भाव निरासक्त। आउ एपट देख आसक्ति और लोभर पंकरे पड़ जाइथिबा दुर्योधन। आस द्रौपदी आस आसिकी मोर कोଳରେ बसी जाओ दुर्योधन। भगवान श्रीकृष्ण ठीक कहते देवी। दुर्योधन को तार कर्मर फल मिलवा उचित। हे पार्थ जे कर्मयोगी होती से माने आसक्ति त्याग करी कर्मर सफलता बा विफलतार स्थिर बुद्धि संपन्न हो जोग द्वारा परमात्मा उपरे आस्था रखी कर्म करिथांती। सेथिपाई जोगस्थित बोलाई थांती। हे पार्थ ईश्वर को समर्पण करिवार भावना रे करा जाउथिबा कर्म फल प्राप्ति पाई कामना रखी करा जाउथिबा कर्म ठारू केते गुण रे अधिक श्रेष्ठ होइथाए। ज्ञानी पुरुष कर्म फल रे एते टिके भी आशा न रखी स्थिर बुद्धि जोग करी कर्म करिथाए। आउ पाप पुण्य आदि भावना ठारू मुक्त होइथाए। पार्थ तमे भी ए सब भावना मुक्त हो जिवो जदि तमे स्थिर बुद्धि कर्म रे आचरण करिबो। जोगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समभूत्वा समत्वं जोग उच्यते। त्याग कर आसक्ति हे धनंजय। रुह कर्मे रत जेमिति जोगी। सिद्धि असिद्धिर न करी तुलना। सुखे दुखे हुआ जे समभोगी। जोगर परिभाषा जे समत्व। जोगर परिभाषा जे समत्व। स्थिरता कर्म पाई उपयोगी। जोगर परिभाषा जे समत्व। स्थिरता कर्म पाई उपयोगी।
যোগী জয় পরাজয় লাভ হানি কথা বিচারন্তি যিয়ে কেবল ভোগী জয় পরাজয় লাভ হানি কথা বিচারন্তি যিয়ে কেবল ভোগী। ପାର୍ଥ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ, ଫଳର ବାସନାରେ ଫଳ ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କର୍ମ କରୁଥିବା ସକାମ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇପାରେନି। ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖ୍ୟାତି ଇତ୍ୟାଦି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ହେ କେଶବ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟିରୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେବ? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଯଶ ଅପଯଶ ଏ ସମସ୍ତ ଭାବନା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ସେ ଏ ସମସ୍ତ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଭାବି ନେଇ ଆଚରଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କେଉଁଠୁ ବା ଆସିବ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଭାବନା? ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ମୋହର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଅ ତାହେଲେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରିବ? ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମୋହର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରର ପରଳ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶରେ ଦୂର କରିଦିଅ, ଆଉ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋହର ସେ ଚକ୍ର ବିହରୁ ବାହାରକୁ ଆଣ। ହେ ପାର୍ଥ, ୟଦା ତେ ମୋହ କଲିଲମ୍ ବୁଦ୍ଧିର୍ବ୍ୟତି ତରିଷ୍ୟତି ତଦା ଗନ୍ତାସି ନିର୍ବେଦଂ ଶ୍ରୋତବ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ଚ। ହେ ପାର୍ଥ, ମୋହ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣରେ ଫସି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ଦେହ ତଥା ସମସ୍ତ ଭୋଗ ନଶ୍ୱର, ମିଥ୍ୟା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍ ଅଥବା ନିତ୍ୟ ଆଉ ଅନିତ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରିଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିରାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷି ପାରେନି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତଥା ମୋହର ବିଲୋପ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବା। ହେ ପାର୍ଥ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ଯାଇ ମୋହ ବର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମିକ ଯୋଗ ବଳର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯୋଗ ବଳ କାରଣରୁ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଯିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ। ପାର୍ଥ, ତମେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର। ସମବୁଦ୍ଧି କର୍ମଯୋଗର ଆଚରଣ କର ଆଉ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଯାଅ।
हे मधुसूदन ए स्थित प्रज्ञ कौन ही थाए मते बुझा। पार्थ दुख भोग करी जहा मनरे उद्वेग आसी न थाए आउ ना तो हृदय रे सुखर लालसा थाए तथा जार हृदय रे क्रोध मोह भय इत्यादि विकारर कौन से भी स्थान न थाए से मनुष्य स्थित प्रज्ञ ही थाए। दुखे सु अनुद्विग्न मनाः सुखे सुविगत स्पृहा वेद राग भय क्रोधः स्थितः धि इति मुनिरुच्यते। बुझाई कुह हे केशव तुम्हें परा ज्ञानी सर्वज्ञ भाषण चरण चलणी रे केमिति काजे स्थित प्रज्ञ केमिति काजे स्थित प्रज्ञ न थाए कामना मने न थाए वासना मने समभाव देखाए से आशा निराशारे कठोर दुखरे जिए विचलित नुहे क्षणे न हुए पुलकित से आनंदर जुआर रे ना मोह ना बेगर हुई अधीन केबे ना हुए क्रोधित ना हुई भयभीत से शुभे न हुए प्रसन्न अशुभे अभाविषर्ण जे भूषित एई गुणे स्थित प्रज्ञ परसे। हे पार्थ एमिति स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था आत्मिक शांति अवश्य प्राप्त होता परमानंद रे विलीन होगा द्वारा यही महापुरुष को सुख बा दुख कदापि विचलित कर एमिति स्थित प्रज्ञ मनुष्य मन से दीपक भली होता है जार ज्योति स्थिर रही था केबे अस्थिर हुए नहीं। प्रभु दीपर ज्योति अधिक समय पर्यंत अचल एवं स्थिर रही न थाए से वायुर सामान्य प्रवाह रे भी अस्थिर हो उठे। हाँ देवी पार्वती प्रभु श्रीकृष्ण तो सही कथा बुझाउछन्ति जे मनुष्यर मन तो कामनार तोफान रे रखा जाइथिबा एक दीप सदृश होता है। कामनार तीव्र पवन से दीपर ज्योति को स्थिर रहिबा को दिए नहीं। प्रभु यही उपदेश देउछन्ति जे मन को स्थिर रखिबा निमित्त मनर कामना को श्रृंखलबद्ध करबा उचित। यदि कामना को श्रृंखलबद्ध न करा जाए तेबे प्रथम कामनार द्वितीय एवं द्वितीय तृतीय कामना जन्म नहीं चली आउ ए प्रक्रिया केबे भी समाप्त हो नहीं। जेमिति जेतेबेले जड़े लोक पाखरे घरटी न थाए सेतेबेले से कुड़ियाटी कामना करिथाए। कुड़ियाटी हस्तगत होला परे से ताठारु बड़ घर चाहिए पुणी ताठारु बड़ घर आ पुणी राजमहल भी कामना करिथाए। तार गोटे कामना असीम लोभरे बढ़ी चली था ताहेले मनुष्य ए समस्त कामना को केमिति श्रृंखलित करि परिबो। एहार सठिक एवं सरल उपाय हेउछि जे मनुष्य मनरे संतोष सृष्टि करिबो। जेउठी जेउ अवस्था रे जेउ क्षण रे ताकु संतोष प्राप्ति हे जिवो सेठारे सही क्षण रे प्राणी सुखी एवं शांत हो जिवो। हे कृष्ण तमे कहूच
जे स्थितप्रज्ञ हेबा निमित्त मन दीपाळीर ज्योति के स्थिर रख, अर्थात मन को इस्तस्तत आदौ करनी, जार अर्थ है कर्म करने समय रे मन स्थान रे बुद्धिर कथा मान, मन को बुद्धिर अधीन रे रख। एया ना अर्जुन, केवल बुद्धि उपरे भरोसा करिबारे भी विपद रही। सेथिपाई विनाश कालर आगमन रे तो मनुष्यर बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, अर्थात जेतेबेले विपत्तिर समय आसे मनुष्य को निजर बुद्धि ही ताको विपथगामी कर दी थाए। हे मधुसूदन, मनुष्य ना तो निजर मनर इच्छा अनुसार कर्म करिब ना बुद्धिर कथा मानिब, ताहले मनुष्य विचारा कौन बाहु करिब? एभली स्थिति रे निजर प्रवृत्ति विरुद्ध रे जड़े केमिति बा निज जीवन बीतेब? हे मधुसूदन, मुक्ति एवं मोक्षर मार्ग अनुसरण करने निमंते जड़े मनुष्य केमिति निजर प्रवृत्ति बदलाई पारिब? एहार कौनसी उपाय मते कुह। प्रवृत्ति को बदलैबा पूर्वरु एक कथा जानिबा आवश्यक जे प्रवृत्ति किपरि सृष्टि हुए। हे अर्जुन, मनुष्य जन्मरु निज सहित सत्व, रज एवं तम तीनोटी गुण को धारण कर जन्म होता है। ए सृष्टिर संरचना ए तीनोटी गुणर आधार ही करा जाइछि। ए त्रिगुणात्मक सृष्टि रे बास करुथिबा समस्त प्राणी मध्यरे ए तीनोटी गुण ही विद्यमान, किंतु प्रतिटी प्राणी मध्यरे ए तीनोटी गुण मध्यरु कौनसी ना कौनसी गोटिए गुणर प्राधान्य अधिक रही थाए। आउ जो गुणर प्राधान्य अधिक होता है से प्राणीर चरित्र से भली हो जाए। रजगुण विशिष्ट पुरुष ऐश्वर्य, जस, प्रतिष्ठा आउ राज राजत्वर लालसा रखि थाए। तमगुण विशिष्ट आलस्य एवं प्रमादयुक्त होता है। देश, क्रोध भली नकारात्मक भावना ता भितरे परिपूर्ण ही रही थाए। आउ सत्व गुणधारी? सत्व गुण ही उत्तम गुण। सात्विक मनुष्य सहज एवं सरल ही थाए। एमितिरे तो प्रत्येक मनुष्यर स्वभाव रे ए तीनोटी गुण किछि न किछि मात्रा रही थांती, किंतु जो मनुष्य भितरे जो गुणर प्राधान्य रही थाए से सेमिति ही जाए, तार सेमिति प्रवृत्ति हो जाए, आउ सेमिति ता रुचि भी हो जाए। तेणु प्रत्येक मनुष्य निजर प्रवृत्ति एवं रुचि अनुसार ही कामना करिथाए। समस्त कामना को जे सबु काले त्याग करे, जगतरे थाए हेले न थाए जगतरे। शांति को से पाए भल बांटू थाए शांति नीति, हेले माड़े नाही स्नेह प्रेम भावर कति। एही परी जोगी केबे हुई नाही मोहित, छाड़ी जाए नाही डंगा हाथ छाड़े नाही कात। आसी गले अंत काल एही स्थित प्रज्ञ जोगी, होई जाए ब्रह्मेलीन सेई महान बैरागी। केशव, तमे कहूच जे प्रतिटी प्राणी निज निजर प्रवृत्ति अनुसार भिन्न भिन्न कामना करिथाए, किंतु मो विचार रे प्राणी भितरे जो गुणर प्राधान्य भी रही थाउ तार जेमिति भी प्रवृत्ति हो, तथापि भी समस्त प्राणी एका भली कामना करिथांती। अर्थात समस्त प्राणी केवल सुख ही कामना करिथांती, दुखर कामना केही करि न थाए। केही केबे दुखी होबक चाहेनी, सेथिपई सुखी होबक समस्त चेष्टा करिथांती। होय तो से राजा ही थाउ नले दरिद्र, नारी हो
बा पुरुष तमें ठीक कहिछ अर्जुन जे समस्ते सुखर कामना ही करिथांती किंतु सुखर परिभाषा प्रतिटी व्यक्तिर प्रवृत्ति एवं रुचि अनुसार परिवर्तित होता है। जड़े साधु पुरुष को अन्य को सुख दे सुख मिली थाए, अन्य को सहायता करी से खुशी लगी थांती। किंतु जड़े नीच प्रवृत्तिशील व्यक्ति अन्य को दुख दे सुखी होता है। अन्य कहीं सुखरे रहिले ताको दुख लगे। सेथिपाई सुख एवं दुखर परिभाषा निज निजर प्रवृत्ति एवं रुचि अनुसार प्रत्येक प्राणी निमंते भिन्न भिन्न अटे। एमितिरे कौन काको केबे स्थायी सुख प्राप्त होता है न थाए ना सुख स्थायी ना दुख स्थायी। किंतु हे केशव सुख कौन स्थायी ही परिबनी? सुख केमिति स्थायी ही परिबो पार्थ? ए संसार तो परिवर्तनशील, एठारे प्रतिटी क्षण रे परिवर्तन हो चली थाए पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृतिर नियम, एठारे कौनसी भी वस्तु स्थायी ही पारि न थाए। तुमर स्मरण थिबो मु तुमको प्रथमरु कहिथिली जे आम शरीर अवस्था सबु भी स्थायी नहंती, ताहले सुख आउ दुख केमिति स्थायी ही पारिबे? एहार अर्थ होची जे सुख सहित मनुष्य को दुख भी भोगिବାକୁ पड़ता है। हाँ पार्थ, सुख एवं दुख गोटिए चक्रर दुईटी व्यासार्थ सदृश। ए चक्र घोरी चली थाए घोरी चली थाए। जो प्राणी सुखरे हसी थाए उन्मत्त ही थाए, से प्राणी दुख आसिले रोदन करे विलाप करे। किंतु कालचक्र केबे अटकी जाएनि, सुख दुखरे चक्र एमती घुरी चली थाए। आ मनुष्यर जीवन रे सुख एवं दुख बारंबार आसुथांती आ जाउथांती। ना चक्र अटकी जाए ना सुख बा दुख मनुष्य जीवन में अटकी रही पारती। जदि सुख आसी से सर्वदा रही पारे, आ जदि दुख भी आसी से भी सर्वदा रही पारे। देवी प्रभुंको दिव्यवाणी रूपरे आज समग्र मानव जाति निमित्त एक नूतन अध्याय रचना कर जाउछि। प्रभु केते सहज एवं प्रभावशाली भाषा रे जीवनर भेद को बुझाई चलती। कर्मयोगर गंठी गोटी गोटी करी खोली चलती। प्रभुंकर ए उपदेश जदि मनुष्य भक्ति भाव में ग्रहण करनी ताकु तार आचरण करनिए, ताहले केही भी ताकु धर्मपथरु विच्युत करि परिबेनी। सेथिपाई हे पार्थ, अनासक्त जगत द्वारा कामना उपरे विजय प्राप्त हेबा अत्यंत आवश्यक। कहीं कामना परिपूर्ण जेते हेले भी पूर्ण ही न थाए। मनुष्य वृद्ध हो जाए किंतु आसक्ति जनित कामना केबे भी वृद्ध हुएनी, केबे भी वृद्ध हुएनी। गोटिए कामना अनेक कामना को जन्म दे थाए। प्रतिटी कामना सहित मनुष्यर तृष्णा भी बढ़ी चली थाए, आ तृष्णा सहित असंतोष भी बढ़ी चली थाए। आउ एमिति
असंतुष्ट मनुष्य जी कामना द्वारा प्रभावित तार उचित अनुचित विवेक आदौ रही न थाए। पार्थ से मु तुमको कहूछि जे तमे निजर कामना को त्याग करदे स्थितप्रज्ञ ही जाओ। स्थितप्रज्ञ जहा कर्म जोगर चरम अवस्था। वाह प्रभु वाह, केते सुंदर कथा कहले आपण। वाह हे मधुसूदन, तमे तो कहूच कामना को त्याग करी स्थितप्रज्ञ ही जीवी, किंतु स्थितप्रज्ञ हेबा निमंते सबुठु आवश्यक कौन ही थाए? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? किंतु मनुष्य निजर बुद्धि को केमिति बा स्थिर रखि परिबो? आशा और निराशा ए दुईटु मुक्त हेबा परे बुद्धि को स्थिर करा जाई पारे। बुद्धि स्थिर हेले इंद्रियर विषय अनुराग दुर्बल हो जाए। जदि जने निजर इंद्रिय को दुर्बल कर दिए ताहले कौन से इंद्रियर वासना नष्ट हो जीवो? ना अर्जुन, जदि कौन से दुर्घटना वशत जनकर आखि अंध हो जाए तेबे यह आवश्यक नुह जे तार आखि रूपर कल्पना करबा भी त्याग करदब। आखि न थाई सुद्धा तार मन एमिति दृश्य सबुर कल्पना भी करि पारे जहा ताको विषयर मोहरे पुणे ग्रास करि जाइथिबो। पार्थ, जने अंध मनुष्य भगवान को स्वरूप को भी कल्पना करि पारे। आउ एक नारीर शरीर को भी कल्पना करि पारे। तेणु कौन इंद्रिय थिबा नथिबारे मनर वासना एवं आसक्ति रे कौन से प्रभेद पड़े। हे अर्जुन, तमे एतिकी जान जेमिति कौन से मनुष्य आखि बंद करे एक भी प्रदर्शन करिथाए जे से भगवान का ध्यान रे बसिछि, किंतु वास्तव रे ता मनर आखि सम्मुख रे सेतेबेले भगवान को रूप नुह बरं निज प्रेमिकार शरीर नाची उठुथाए। यार अर्थ होउछि जे तार आखि तो बंद अछि किंतु ता आखिर वासना ताको तथापि भ्रमित करूछि। गंगा भक्तिर गंगा कर्मर गंगा अर्जुन सहित से ही गंगा रे डूबी जाई संसार सारा। डूबी जाइछि संसार सारा। प्रभु धर्मर वेद भूली तमे देई जाओ तमे मोर शरण। प्रतिटी पापरु मुक्ति देवी मु एबे सकार नाही करण। एबे सकार नाही करण। धर्म अधर्मर
श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण